لاہور ملک کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ فضائی آلودگی کے خلاف حکومتی اقدامات پر سوالیہ نشان۔ آلودگی لاہوریوں کی جان کا روگ بن گئی۔ ایئر کوالٹی کی مجموعی شرح 227 ریکارڈ۔ شہر میں گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں، جبکہ آنکھوں میں چبھن کی بھی شکایات۔ طبی ماہرین نے ایک بار پھر سے ماسک لگانے کا مشورہ دے دیا۔ ماحولیاتی آلودگی کی بڑھتی شرح نے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر رہا، جبکہ دنیا بھر میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 227 ریکارڈ کی گئی۔ فضائی آلودگی کی عالمی درجہ بندی میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ذکی فارم 283 میں آلودگی کی شرح 283 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی کونسلیٹ میں AQ لیول 246 رہا۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں 279 اور LAS میں ایئر کوالٹی انڈیکس 221 ریکارڈ کیا گیا۔ دن بھر شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا رہا۔ آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ لاہور کی 208 ترقیاتی اسکیمیں منظور، MCL کی 94، واسا کی 114 اسکیمیں شامل۔ منصوبوں کی تکمیل کی ذمہ داری DC موسیٰ رضا کے سپرد۔ واسا کے لیے 36 ارب 14 کروڑ کے فنڈ کی منظوری۔ بلدیہ عظمیٰ کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 18 ارب 86 کروڑ روپے ملیں گے۔ شہر کی گلیاں پختہ ہوں گی۔ شہر میں نکاسی اور فراہمی آب کا کام ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی 208 اسکیموں کو منظوری مل گئی۔ MCL کی کل 94 اور واسا کی 114 اسکیمیں منظوری کے لیے شامل کی گئی ہیں۔ کمشنر زید بن مقصود نے اسکیموں کی منظوری دی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 18 ارب 86 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ واسا کے لیے 36 ارب 14 کروڑ 35 لاکھ کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے مطابق گلبرگ زون کی 5 اسکیموں کے لیے 74 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے۔ راوی زون کی 29 اسکیموں کے لیے 5 ارب 10 کروڑ 77 لاکھ، گنج بخش زون کی 22 اسکیموں کے لیے 3 ارب 57 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح سمن آباد زون کی 4 اسکیموں کے لیے 84 کروڑ 55 لاکھ، نشتر زون کی مجموعی 21 اسکیموں کے لیے 6 ارب 37 کروڑ 66 لاکھ کی اسکیمیں منظور کر لی گئیں۔ شالامار کی 13 اسکیموں کے لیے 2 ارب 21 کروڑ 22 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال۔ سڑکوں کی بحالی کے منصوبے کے فوری آغاز کا فیصلہ۔ منصوبے پر 131 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ لاگت آئے گی۔ پنجاب بھر کی 462 اسکیموں کی تعمیر و بحالی شامل۔ مجموعی طور پر 6990 کلومیٹر شاہراہوں کی بحالی ممکن ہو سکے گی۔ سڑکوں کی بحالی کے منصوبے پر تعمیراتی کاموں کے فوری آغاز کا فیصلہ کر لیا گیا۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے پر 131 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 6990 کلومیٹر شاہراہوں کی بحالی ممکن ہو سکے گی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کی 462 اسکیموں کی تعمیر و بحالی منصوبے میں شامل ہے۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے میں 2 اقسام کی سڑکوں کی تعمیر اور بحالی ہو سکے گی۔ منصوبے میں آرٹلری اور کلیکٹر کیٹیگریز کے روڈز شامل ہیں۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے کو 3 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سڑکوں کی بحالی کا منصوبہ 3 زونز، سینٹرل زون، نارتھ زون اور ساؤتھ زون پر مشتمل ہوگا۔ سینٹرل زون میں 2700 کلومیٹر روڈ کی 132 اسکیموں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل زون کی اسکیموں پر 40 ارب 79 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ سینٹرل زون میں لاہور ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے اضلاع شامل ہیں۔ لاہور ٹرام پروجیکٹ میں بڑی پیش رفت۔ LDA کا منصوبہ مالی سال میں شامل کرانے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب سے 7 کروڑ طلب، غیر ملکی اور ملکی کنسلٹنٹ سے فیزیبلٹی تیار کرائی جائے گی۔ منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر ٹرام فراٹے بھرے گی۔ LDA نے منصوبہ رواں مالی سال میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منصوبے کی تعمیر پر 25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ LDA نے فیزیبلٹی تیاری کے لیے 7 کروڑ روپے جاری کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ LDA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسکیم شامل کرنے اور فیزیبلٹی کے لیے سمری لکھ دی ہے، جسے ارسال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے لاہور ٹرام منصوبے کی فلی فنڈنگ 2024-25 میں کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ منصوبے کی غیر ملکی اور ملکی کنسلٹنٹ سے فیزیبلٹی تیار کرائی جائے گی۔ چیف انجینئر کی توسط سے DG LDA آج سمری ارسال کریں گے۔ واضح رہے کہ لاہور ٹرام منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد LDA حکام نے منصوبہ فاسٹ ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ لاہور کو صاف بنانے کا مشن، 20 لاکھ گھروں کو کچرے کی ٹوکریاں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ کا LWMC کو پروجیکٹ پر عمل درآمد کا حکم۔ LWMC نے کام شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 20 لاکھ کوڑے کی ٹوکریاں دی جائیں گی۔
घरों के बाहर कूड़ा जमा नहीं होगा। लाहौर के हर घर में वेस्ट बिन फ्राहम करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LWMC को वेस्ट बिन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। वेस्ट बिन प्रोजेक्ट के नफाज के लिए LWMC ने वर्किंग शुरू कर दी। वेस्ट कलेक्शन पर 5 मरला, 10 मरला और बड़े घरों को आयद कूड़ा टैक्स को नोटिफाई किया जा चुका है। इब्तिदाई तौर पर 20 लाख से जायद घरों को वेस्ट बिन फ्राहम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में सफाई का फिलहाल मौजूदा मॉडल ही जारी रखने पर इत्तिफाक किया है। मेडिकल के तुलबा के लिए बुरी खबर। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए। 21 अक्टूबर से मेडिकल कॉलेजेस में होने वाले दाखिले रुक के सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया गया, जबकि दाखिलों का अमल अदालती फैसले तक मौखर कर दिया गया है। मेडिकल के तुलबा के लिए बुरी खबर है। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों को रोक दिया है। 21 अक्टूबर से मेडिकल कॉलेजेस में होने वाले दाखिले रुक गए हैं, जबकि सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर यह फैसला किया गया है। दाखिलों का अमल अदालती फैसले तक मौखर किया गया है। लेस्को में बिजली चोरी की शरह फिर से बढ़ गई है। कंपनी को 6 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 14 करोड़ 70 लाख यूनिट सिस्टम से गायब है। कंपनी के प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस की शरह 13% तक रिकॉर्ड की गई है। लेस्को में बिजली चोरी की शरह में एक बार फिर इजाफा हो गया। कंपनी के प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस में 1.8% तक इजाफे की वजह से 6 अरब 50 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम से बिजली चोरी की मद में 14 करोड़ 70 लाख यूनिट गायब हो गए, जिसकी वजह से कंपनी की प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस की शरह 13% तक रिकॉर्ड की गई। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता साल लेस्को के लाइन लॉसेस की शरह 11.2% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि रवा साल 1.8% तक लाइन लॉसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे 6.5 अरब का नुकसान हुआ। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल ओवर बिलिंग करके लाइन लॉसेस को छुपाया गया था। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान 601 मुलजमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरी में मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 578 घरेलू, 18 कमर्शियल और 10 ज़रई कनेक्शन शामिल थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके डिटेक्शन बिल की मद में 4,72,000 यूनिट्स चार्ज किए गए। नए माली साल को शुरू हुए 4 माह गुजर गए। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की एक किस्त भी ना मिल सकी। फंड दस्तयाब न होने से सरबराहान परेशान। बिल्स की अदायगियों में भी मुश्किलात। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फंड्स मिलते ही स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। स्कूलों में नए कमरों की जरूरत, खतरनाक इमारतों की बहाली दरकार, लेकिन नए माली साल के 4 माह गुजरने के बावजूद भी शहर भर के स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की एक किस्त भी जारी न हो सकी। सरकारी स्कूलों को पहली समाही की मद में 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होना थे। स्कूलों के पास फंड्स दस्तयाब न होने से सरबराहान परेशानी से दो चार। स्कूल सरबराहान का कहना है कि शहर भर के स्कूलों में 2000 नए कमरों की जरूरत है। फर्नीचर की मरम्मत भी नॉन सैलरी बजट से की जानी है। स्कूल सरबराहान का मजीद कहना था कि फंड्स न होने के बाइस बिल्स की अदायगियों में भी मुश्किलात हैं। उनका कहना था कि खतरनाक इमारतों के लिए बजट में मुख्तस 1.5 करोड़ रुपए के फंड्स भी ताहाल मुतल्लिका स्कूलों को जारी नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फंड्स मिलते ही स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। शफीकाबाद बंद रोड पर शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो गए हैं और टाइलें भी टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फाल करने का मुतालबा किया है। फिरोजपुर रोड शमा स्टॉप के करीब नसर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके नाकारा हो गए। मकीनों ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके नाकारा हो चुके हैं। अहले इलाका ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। मजंग चुंगी से मुत्तसिल वाटर फिल्ट्रेशन अरसे दराज से गैर फाल पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर गंदगी के ढेर मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के हिफाजती जंगले और दरवाजा भी चोरी हो चुका। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल करने का मुतालबा किया है। शहरियों की फ़ोन की लोकेशंस और कॉल्स का डाटा क्यों निकलवाया? मुतल्लिका अफसरान को हिसाब देना पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब के केसेस में लाखों शहरियों की कॉल रिकॉर्ड और लोकेशंस ली गई हैं। शहरियों की फोन की लोकेशंस और कॉल्स का डाटा क्यों निकलवाया? मुतल्लिका अफसरान को हिसाब देना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान लिए गए फोन की लोकेशंस और CDRs का रिकॉर्ड चेक करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर से तमाम रिपोर्ट्स के ऑडिट के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। टीमें तमाम इजला और यूनिट्स में जिन केसेस में CDRs निकलवाई गयी उनकी FIRs चेक करेगी।
कितने केसेस में CDRs मुताबिकत रखती थीं, उनकी तफसीलात चेक की जाएंगी। CDRs निकलवाने के लिए SOPs को फॉलो किया गया या नहीं, टीमें चेक करेंगी। टीमें ये भी देखेंगी कि मुतलका केसेस में तफ्तीशी को ईमेल करके CDR के लिए इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इजाजत ली गई। CDR की रिकॉर्ड की चेकिंग के लिए DSP की सरबराही में 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। रिकॉर्ड चेकिंग का सिलसिला 18 अक्टूबर से 4 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत का स्कूलों में बसों की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। स्कूल बसों के लिए कानून साजी करने, टोरेंटन मार्केट को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने फसलों की बाकियात जलाने वालों को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। मजीद समाअत 26 अक्टूबर को होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात का मामला। हाई कोर्ट का इलेक्शन ड्यूटी के लिए सिक्योरिटी फराहम न करने पर DIG फैसल कामरान पर इजहार नाराजगी। सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत बरकरार। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करने का 4 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 अक्टूबर को साबिक SP सैफुल मुर्तजा को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया। कोर्ट लखपत खदीजा यासीन कत्ल केस के मुलजम पर जुर्म साबित। सेशन अदालत ने मुजरिम काशिफ को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के लिए मुवजना रकम लेकर दूसरों की जगह दौड़ में शिरकत की मनसूबाबंदी का केस। आर्डर पर काफी न देने और बदतमीजी करने पर शहरी TLF कॉफी शॉप मॉडल टाउन के खिलाफ अदालत पहुंच गया। 10 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्तवार मोहम्मद उमर के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 11 नवंबर को तलब कर लिया।